very warm good morning to the respected principal ma'am and all the teachers who are present here. It is a moment of extreme pleasure to welcome all of you in the 7th webinar in our host training. Today our resource person is Mr. Sandeep Kumar sir. He has done his BSc in Physics and now he is teaching in our school, that is a board public school. So I would like to invite Mr. Sandeep Kumar sir to come here and represent your resource topic. So please come here. First of all, good morning. Good morning, respected principal, ma'am, management, and teachers. I am Sandeep Kumar, teacher of Support Public Schools. Today I got an opportunity to participate in the webinar to express my view on the topics teaching methods of science. First of all, one more questions. Then, what is science? And more explain what is science. So, yes, sir. साइंस जिसे हम हिंदी में विज्ञान कहते हैं, दो शब्दों के मिलने से यह एक शब्द बना हुआ है, वि और ज्ञान। वि से तात्पर्य विशेष या विशिष्ट, ज्ञान। ज्ञान का बताने की आवश्यकता नहीं है, इस शब्द से आप स्वतः परिचित हैं। तात्पर्य ये है कि विशिष्ट क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करना, कराना, यह जो कला है या विषय है, इसको हम विज्ञान कहते हैं। धन्यवाद सर, आपने अवसर दिया बोलने का। थैंक यू सर। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं टॉपिक आपको पता चल गया साइंस पे। अगर हम बात करें डे टू डे लाइफ में साइंस का इम्पोर्टेंस हो, तो आप जानते होंगे साइंस का इम्पोर्टेंस कितना है। एनी पर्सन एक्सप्लेनिंग साइंस डे टू डे लाइफ यूज? यस सर। Day to day life, there are many uses of sciences. In we make a curd, we use milk and add some object to change it in a curd. It is the chemical changes, and we need a science for many work. We make a cake, we make a food. This is also a usage of science. सर एक्सप्लेन किए कि डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि आप लोग पता होगा कि दही बनाने के लिए दूध की जरूरत पड़ता है, और हम दही बना पाते हैं दूध के क्वांटिटी से। ठीक है, वैसे एक और बात, अगर भी हम बात करते हैं व्हाट इज साइंस इम्पोर्टेंस फॉर अ स्टूडेंट, कि स्टूडेंट को साइंस जहाँ कह सकते हैं कि क्यों जरूरी है साइंस पढ़ाना, या फिर क्यों कह सकते हैं कि सर हमारा साइंस जो वो अच्छा होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन और है, व्हाई इज साइंस इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट? एंड फॉर एक्सप्लेन व्हाई इज साइंस इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट? सो मैनी पर्सन्स एक्सप्लेन। Yeah. So basically science is very important part of everyone's life. At the time of cooking, where science is used, as well include that process of fermentation, okay, the process of boiling a water vapor and condensation, all the process that is used, that comes under science. Science tells us the systematic way of doing anything in life. Yes. थैंक यू। जैसे कि सर बताया कि साइंस का डे टू डे लाइफ में अगर बोलेंगे स्टूडेंट लाइफ में तो क्या यूज है,
बात करते हैं साइंस एंड स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग द नेचर्स वर्ल्ड and their place in its answers fundamental questions about the its answers fundamental questions about the earth, universe and life. This known as the Forrester Debates completely of world. And the last questions, what are the 5 uses of science? Anybody? The last questions, what are the 5 uses of science? साइंस के कुछ 5 यूज बता सकते हैं, कुछ 5 यूज जो आज हम लोग डे टू डे लाइफ में करते हैं, 5 यूज, 5 यूज, कोई भी? Sir, I will try to give answer of this question. Yes. The very first thing that we use motorcycle, where physics is used, that is also part of science. At the time of cooking, where science is used, if I talk about the process of fermentation, okay. If I talk about the process of making curd from milk, then there is also science is used. The part of science that is chemistry. This is nothing but the irreversible chain. If I talk about bow and arrow, where also the process of science which is used, and many much more things is there, sir, where we can use systematic way, where we can use the science in a systematic way, so that we can proceed for that particular process. थैंक यू सर, वेरी गुड सर। तो हमें ये पता चला कि 5 यूजेस अगर हम बात करते हैं, अभी अगर मैं यहाँ से कहीं जाना है तो हम 2 तरफ जा सकते हैं, या तो पैदल जाएंगे या फिर साइकिल का यूज़ करेंगे, या फिर कैब को अगर हमको कंज्यूम करना पर जाना है तो हम हेलीकॉप्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं साइंस से आया है या फिर साइंस उसको बनाया। मेरे पास कुछ एक्सपेरिमेंट है, फिर एक्सपेरिमेंट हम दिखाने वाले हैं कि कैसे हम बच्चे लोगों को समझा सकते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट थ्रू आउट कि साइंस कैसे होता है, साइंस क्या होता है। सौरभ मैम, प्लीज कम हियर एंड देन ट्राई वन क्वेश्चन। सबसे पहले आपको एक टास्क दिया है और टास्क ये है कि आपके पास एक ये मेरे से मतलब काटी है, इस पे क्या करना है, ये काटी को बैलेंस करके दिखाना है। क्या आप इन काटियों को मतलब कि कह सकते हैं आयरन नील्स को इस पे कितने काट सकते हैं, ये टास्क है। अगर आप कर लेते हैं तो किस मेथड से ऊपर आई विल ट्राई। हाँ बस इसके ऊपर, हाँ इसके ऊपर क्या पॉसिबल है? क्या आप लोगों को लग रहा है ये पॉसिबल है? पॉसिबल है। अगर मैं ये कहूँ आप किसी भी बात कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, आपको जिस तरह लगे, स्लोप में करना तो कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इसके ऊपर में कितने व्हील्स को आप इस पे बैलेंस कर सकते हैं। आई विल ट्राई द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस। नो, हाँ इसी पे खड़ा करना है। Any more persons? Try. Any more persons? Sir, I think it is not possible. अगर मैं ये कहूँ कि पॉसिबल है, मैं इस 7 नील्स को अगर मैं खड़ा कर दूँ इसके ऊपर, क्या ये पॉसिबल है? बस ओनली फॉर साइंस के यूज करके हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। एनी पर्सन्स ट्राई? क्या किन्हीं को ट्राई करना है? यस सर, कम है। कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे हम लोग सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज करके इसको बैलेंस कर सकते हैं, और ये नहीं, ये सारा को हम बैलेंस करेंगे एक साथ में। नो दिस इज नॉट। और किसी को ट्राई करना है, और किसी को ट्राई करना है, क्या ये पॉसिबल है? कितने कोई को लग रहा है कि ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, साइंस का यूज है इसलिए पॉसिबल है। It is possible.
अगर मैं ये कहूँ कि ये सारे जितने भी यहाँ पे कार्टून्स रखे हुए हैं, अगर मैं इसके ऊपर बैलेंस कर दूं, क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो आइए हम उस पर ट्राई करते हैं, ठीक है? सबसे पहले इसको हम लेते हैं, जस्ट वेट। ऑफ कर दीजिए उसको फिक्स कर दीजिए। एक्चुअली यहाँ पे हमने क्या किया, सेंटर ऑफ मास का फंडा यूज किया, और सेंटर ऑफ मास ये कहता है कि अगर आप किसी एक किल्स पे अगर ज़्यादा बड़ा रहता तो हम और ज़्यादा किल्स को स्टेबल कर सकते थे, मतलब बैलेंस कर सकते थे। कहीं मजेदार था। और यहाँ से हम बच्चा को ये सिखा सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास से क्या कर सकते हैं। आपको ये पता होगा कि आप एक कील के ऊपर अगर चढ़िएगा तो आपका जो प्रेशर है वो ज़्यादा लगेगा। आप कभी देखने में बैग, स्कूल बैग, उसका जो होता है बैग का जो पट्टा वो क्या होता है, चौड़ा होता है, ठीक है। एक्चुअली बात ये है कि अगर यदि सेंटर ऑफ मास लगाएं तो हम लोग बहुत ही चीज कर सकते हैं। क्या ये समझ में आ गया? अब एक और एक्सपेरिमेंट है, बुलाना चाहेंगे कौन सा? आपके पास सर ये आपके पास ये पाइप व्यवस्था है, ठीक। इसको बिना खींचे या फिर बिना पुश किए बस इसको पकड़ के ही आपको ये बॉर्डर को ऊपर उठाना है। क्या पॉसिबल है ऐसा? बिना खींचे। सर आई विल ट्राई। सर ये किस प्रोसेस से ये ऊपर हुआ सर? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक्चुअली ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट बेसिस पे था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? अगर हम ये बोलेंगे कि बिना खींचे इसको ऊपर उठाना है तो क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे रोटेट करना शुरू करेंगे, और ये जब रोटेट होना शुरू होगा तो देखिए यहाँ पे ये बोतल ऑटोमेटिक ऊपर चला गया कि नहीं गया? आगे यहाँ फिजिक्स का कौन फेनोमेनन काम करता है? तो बोले सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स? और ये बैलेंस है। अगर किसी को इस तरह से पूछ दिया जाए कि बताओ कि इसको जो है बिना खींचे ऊपर करना है, तो उनको लगेगा एक समय के लिए कि ये बहुत ही टफ टास्क मिल गया है ना। तो ये तो सभी को आप लोग देखें, अगर हम इस तरह से सिखाएं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है तो बच्चे लोग बड़ा इंटरेस्ट लेंगे, बोलेंगे हाँ सर बहुत चीज सिखा रहे हैं, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बहुत सारे एग्जाम्पल है, उसको लोग यूज कर सकते हैं, ठीक। वैसे मैं एक और टास्क देता हूँ, उसके लिए मैं 500 का
चैलेंज रखी है। जो आप जीत सकते हैं उसको 500 दे देंगे। ये रहा 500 रुपीज। जो इस टास्क को जीतिएगा उसको 500 रुपीज देंगे। अब आप लोग में से कौन है जो यहाँ आके उस टास्क को कंप्लीट करना चाहते हैं? आ जाइए सर, आ जाइए। 5 मिनट की बात है। तो एक्चुअली बात ये है सर, हम 500 रुपये आपको देंगे पर उसके पीछे एक बात है सर। अब मेरे सामने बताइए। टास्क ये है सर कि आपको ये सामने दिख रहा है दीवार से, यहाँ पे देखिएगा सामने से आपको ये पैर को इसमें से डालना है और यहाँ पे इसको रखना है अपना ये शोल्डर पे, और ये जो पैर है इसको उठाना है। 1 मिनट के लिए आपको उठा लेना है। आप 500 रुपये लेके चलिए। आपको करना क्या है ऐसे खड़ा हो। जैसे कि आपको ये जब खड़ा होइए सर तो ये पूरा पाँव का एक लेफ्ट साइड है, ये पूरा आपको वापस डालना चाहिए। ठीक है, पूरा डालना चाहिए। चल गया, ये शोल्डर आपका डाल हुआ। आपको सिर्फ 1 मिनट के लिए ये पैर को ऐसे उठाना है। जल्दी 500 मिल गया। आप खड़े हैं सर, आप Raise your legs. विदाउट सपोर्ट, विदाउट विदाउट सपोर्ट। जैसे कि अगर हम ये बोलेंगे कि अगर हमको इस तरह से बैलेंस करना है, देखिए सपोज है हमें यहाँ पे बैलेंस करना है, हम इसको खड़ा कर लीजिए, बट सर को जो टास्क मिला सर आप तो आपको बोला क्या कोई ऐसे जो आगे तय कर सकता है? I will try. बेईमानी नहीं, फिटिंग नहीं। एक्चुअली पॉसिबल है ही नहीं। पॉसिबल क्यों नहीं है? आई बात पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी हम कभी भी, इधर ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी भी अगर हम चाहते हैं इस तरह से पॉसिबल करने के लिए, तो ये देखिए हम पाँव को उठाए ना तो मेरा सेंटर ऑफ मास इधर होने लगा, और जब सेंटर ऑफ मास इधर जा रहा है इसका मतलब कि आप जब भी, जिससे कि हम बोलेंगे ऑलरेडी इस तरह से हम अटैच हो गए और इसको उठाना चाहेंगे तो मेरा सेंटर ऑफ मास शिफ्ट उधर हो ही नहीं रहा है, और जब सेंटर ऑफ मास उधर शिफ्ट नहीं होगा तो हम कभी भी ये टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि सर सेंटर ऑफ मास से हम अगर चाहेंगे खड़ा होना चाहेंगे तो नहीं खड़ा हो सकते। एक्चुअली बात ये है कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास मेरा इधर शिफ्ट हो ही नहीं रहा है। अगर मैं ऐसे खड़ा हो गया तो ठीक है। एक और टास्क है किन करना है? 500 रुपया नहीं अब 500 रुपये एक के लिए था, अब 500 रुपये फिर लगाएंगे सर तो बहुत बहुत समझ चलेगा। वैसे ये एक्सपेरिमेंट हम एक बार स्टाफ ग्रुप में डालेंगे, ठीक है, बच्चों लोग को समझाए तो वहाँ से आपके पास 2 बोतल है, ठीक, इन 2 बोतलों में से बलून को हमने डालना हुआ है, ठीक, कोई एक पर्सन आइएगा और इन बोतल को आपको फूकना है। फूकने का मतलब आपको एयर को फिल करना है और एयर फिल करने के बाद ये फूलना चाहिए। क्या आपको क्या करना चाहिए सर? मोस्ट पेपर सर, आइए सर। सर ये बोल आखिर सर क्या डिफरेंस रहा होगा इन दोनों बोतलों में सर कि यहाँ पे ये बोतल में ये बलून नहीं फूला और इस बोतल में बलून फूल गया? आखिर क्या मेजर डिफरेंस इन दोनों में? क्या ना कि इसमें हवा के दाब का प्रभाव पड़ता है, वायु दाब जो हम कहते हैं। देखिए इन 2 बोतलों में अंतर है। एक बोतल में देखिए कि यहाँ पर जो है सो छोटा सा चिटिंग किया गया है, छोटा सा चिटिंग किया गया है, होल कर दिया इसमें। है ना? तो खुलने का कारण ये है कि इसमें जो हवा जा रही है वो बैलून को खुलने में मदद कर रही है, लेकिन है क्या, यहाँ से हवा जो है
इसे बाहर नहीं आ रहा, ठीक है, इसलिए इसको मदद नहीं मिल पा रही। ₹500 वो पहले एक्सपेरिमेंट किया था। एक्चुअली बात ये है ना कि यहाँ पे आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जान सकते हो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जैसे कि आपको लग रहा होगा यहाँ पे अगर हवा है कि नहीं, मतलब कि एटमॉस्फेयर जो है वो प्रेशर लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। अगर एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है तो वो कैसे लगा रहा है, देखिए हम इसमें होल नहीं किए थे तो इसके अंदर में पहले से हवा फिल, ठीक, बट जैसे हम इसमें होल कर दिए, देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा शायद, जब हम यहाँ से इसको बलून को फूके तो यहाँ से सारा हवा निकल गया, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रेशर क्रिएट हो रहे थे वो सारे इस होल से बाहर निकल जाते थे। पर हम जैसे इसमें फिल करते थे तो यहाँ से कोई होल नहीं मिला और यहाँ से हवा बाहर नहीं निकल पाया, जिसके कारण से क्या हुआ, ये बलून फूल लेगा। आप चाहेंगे तो इसको बिना फूक मारे हुए बलून को फुला सकते हैं, कैसे, यहाँ से फूला। क्योंकि देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर था उसको यहाँ से खींच लिया, मतलब बाहर निकाल लिया, और जब बाहर निकल गया तो ये क्या हुआ, बलून ऑटोमेटिक फुल हो गया। समझ में आया बात? ये एक्सपेरिमेंट था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और अगर हम इस तरह से बच्चों लोगों को समझाएं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वैसे एक बहुत खतरनाक एक्टिविटी है और उस एक्टिविटी को समझाने जा रहे हैं। एक्टिविटी ये है कि आपको पता होगा कि डे टू डे लाइफ में आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, आपको पता होगा कि वहाँ पे कंडक्टर लगा होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, और कंडक्टर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो आपको ये भी पता होगा कि हीट प्रोड्यूस करता है। आप क्लास 10 का एक टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक, तो वहाँ पे फॉर्मूला होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का H बराबर I²RT, और उस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम आज समझने जा रहे हैं। थोड़ा सा रिस्क है और इसके लिए बनाना चाहेंगे हम थोड़ा सा असिस्टेंट यही कर सकते हैं। अगर हम इस एक्सपेरिमेंट से बच्चों को समझाएं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है तो उसको समझने में मजा आएगा और लगेगा कि हाँ कुछ समझे हम। इसको कनेक्ट करना सर, देखिए एक्चुअली ये तार तो आप कभी ना कभी देखे होंगे, कहीं ना कहीं देखे होंगे। ये किस चीज का तार है, एक्चुअली ये मेटल का तार है पर इसको नाइक्रोम का तार बोलते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि जब भी करंट पास होता है एक कंडक्टर में तो वहां से हीट प्रोड्यूस होता है। सर वन थोड़ा सा खतरनाक है, इसको घर पे ट्राई ना करें। आपको जब ये स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ क्योंकि हीट प्रोड्यूस हो रहा है, और अब देखिए कुछ देर के बाद ये वायर जो है वो कैसा हो जाएगा, पूरा डिफ्यूज हो जाएगा। इससे ये पता चलता है कि जब भी कोई कंडक्टर होता है उसमें हीट प्रोड्यूस होता है। आप शायद देखे भी होंगे, अभी आप यूज करते होंगे इंडक्शन का हीटर्स का, सब में ना यही फंडामेंटल यूज होता है। थोड़ा ज़्यादा किसी के पास पेपर है क्या, छोटा सा पेपर दीजिएगा सर, आप इसको भी नहीं, हाँ सर ठीक है ठीक है। क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रहा है? क्या आपको दिख रहा है रेड रेड होते जा रहा है? क्या ये जो रेड हुआ है इससे ये पेपर में आने लग जाएगा? अच्छा मुझे ये बताइए, ये पेपर नॉन मेटेलिक है या फिर नॉन मेटेलिक है? और आपको पता है कि नॉन मेटल कभी भी करंट को प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक। तो अगर हम उसमें टच करवाएंगे तो ये करंट लगेगा हमको? नहीं, करंट नहीं लगेगा। देख रहे हैं कैसे लागू हो रहा है? और इस कॉन्सेप्ट से हम बच्चों को सिखा सकते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप जितने भी गैजेट्स यूज करते हैं, आयरन को यूज करते हैं, आप घर में तो आयरन को यूज करते ही होंगे, तो वहाँ पे भी यही इफेक्ट होता है। वहाँ पे आयरन जो हीट होता है ना, तो इसी फंडामेंटल्स पे होता है, ठीक। अगर हम इसमें ट्राई करना चाहेंगे इस पेपर को, इसमें आग लगे,
आग लग गया ना, वैसे आग लगती है। एक्चुअली होता कैसे बनता है? थैंक यू। यहाँ से बच्चों लोग को हम ये समझा सकते हैं कि करंट में भी हीट होता है, ठीक है, और करंट में हीट होता है और बहुत खतरनाक वाला हीट होता है। अभी और एक तो एक्टिविटी बाकी है, शायद अगर जी करके देखना चाहेंगे तो आ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। एकदम है हाँ भाई आइए, आप अपना मोबाइल लेके आइएगा। हाँ, अपना मोबाइल लेके आइएगा। मेन बात देखता मैं कहीं और थी, इसलिए उसमें बुलाया गया कि आप यहाँ आइए। डिस्टर्ब किया गया। अगर आप ये मोबाइल लेकर आए, अगर हम ये बोले कि इस मोबाइल को बिना फ्लाइट मोड किए, ना ही स्विच ऑफ किए, इसका नेटवर्क गैप करना है, क्या आप कर सकते हैं? कैसे कीजिए? This is not possible. और अगर हम गैप कर दें तो ये आपके पास मोबाइल दिख रहा है, इसको ना हम स्विच ऑफ करेंगे, ना ही इसको हम फ्लाइट मोड में डालेंगे, और इसका नेटवर्क ऑटोमेटिक गैप हो जाएगा। आपको अपने मोबाइल का नंबर आ गया। अभी फ्राइडे स्केच का एक लो हुआ है जो आप 11th-12th में पढ़िएगा, फिर यहाँ पे हम उसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर यूज़ किया। फ्राइडे स्केच कहता है कि अगर किसी तरह से इसको हम प्रोडक्ट दें, आप उसको बैग में डालिएगा तो कोई तरह की दिक्कत नहीं है, पर अगर हम इसको एल्यूमिनियम फॉइल से ढके तो इसका सारा नेटवर्क चला जाएगा। ये कल दुकान गया चाउमीन खाने के लिए, तो वहाँ से भैया से मांग कर खरीदने का पैसा नहीं था। यही गलत किया, आप चाउमीन वो लेते आते ना। सर चाउमीन लेके आते तो फिर खराब हो जाता सर, फिर किसी को खिला नहीं सकते, फिर पैसा वेस्ट किया था। हाँ, फिर से मौका दिया जाएगा सर, ठंडा का मौसम आ रहा है, उस समय लेते आइए। ठीक है सर, आप कैसे मैम आप फिर हो सर? कौन सर? मोबाइल दीजिए मैम, आप अपना मोबाइल नंबर इसमें डाल कीजिए और आप अपने मोबाइल में कॉल कीजिए। हम स्विच ऑफ नहीं लेके मोबाइल पर नहीं फ्लैट मोड स्पीकर पे डालिए मैम। ये आप ही करना पड़ेगा, भूल तो नहीं फिर से है। ट्राई कीजिए, फिर से ट्राई कीजिए। नंबर याद लेकिन मैं कैसे याद कर लीजिए? आपको मोबाइल में दे देंगे। ऐसे एक्चुअली होता ये है कि अगर यदि हम इसको एक एल्यूमिनियम फॉइल से पूरा कवर कर दें तो ये होगा क्या कि इसमें एक पिंजरा बन जाएगा, इसको हम कह सकते हैं। तो ये क्या करेगा, अपने नेटवर्क को पास होने नहीं देगा, और ये फ्राइडेज केस लूप कहता है। किन्हीं को और ट्राई करना है तो एल्यूमिनियम फाइल को ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपने मोबाइल। मैम आपको मोबाइल वरना फिर भेज देंगे मैम। चलिए अब एक लास्ट जो फाइनल एक्सपेरिमेंट को हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस एक्सपेरिमेंट को, क्योंकि आजकल ना बड़ा ही ट्रेंडिंग चल रहा है आपका ये स्ट्रिंग। आज बच्चे लोग को या फिर कह सकते हैं बहुत कोई का ये फेवरेट बन चुका है, कहीं भी चल रहे अरे एक स्ट्रिंग भी ले लेंगे। एनर्जी बोले तो स्टील। एनर्जी बोले तो स्ट्रिंग। हाँ, तो क्या ये पीना सही है? अगर हम बोलेंगे कि ये पीना सही है, क्या कोई बोल सकते हैं ये पीना सही है? आज हम एक केमिकल का यूज करके ये
पाउडर है, इसका उपयोग करके हम देखेंगे कि इसमें कितना कलर है और क्या पीने लायक है या फिर वो नहीं। बच्चे लोग को हम अगर सजेस्ट करें तो ये बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे कि ये पीना सही है। ये आप लोग जानते होंगे, ये क्या है? ये ब्लीचिंग पाउडर है। क्या ये? इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? कपड़ा धोने के लिए भी करते हैं लोग, दाग डालने के लिए भी बहुत सारे जगह पे यूज किया जाता है। वैसे हम इस एक्सपेरिमेंट में ये देखने वाले हैं कि इसका जो कलर है, मतलब जितने भी चीज जो ड्रिंक होते हैं उसमें कलर होते हैं या नहीं होते हैं, और कलर होते हैं तो उसको डिस्कार्ड कर पाता है या नहीं करता। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं कोका कोला, पेप्सी है ना, पेप्सी भी लेते हैं। किसी को पीना है? सर आप सब ट्राई कीजिए। सर खांसी भी पर पीना अच्छा बात नहीं है सर, ये सब पीना अच्छी नहीं है। ट्राई कीजिए। चश्मा लगा डेट देख के सर अब कुछ नहीं है, ये मेरा जिम्मेवारी है। आपकी जिम्मेवारी है। हाँ सर, तो पी लो। सर खत्म नहीं कर दीजिएगा, बहुत कोई कठिन होगी। ना हो ना। हाँ सर बिल्कुल। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको ट्राई करके। अभी इसका कलर कैसा है? इसका कलर कैसा है? ब्लैक। अगर हम इसमें डालेंगे कुछ और नहीं समझिएगा इसको। मैं वही चीज था। ठीक है, ऐसे पिला के देख लीजिएगा तब एक खाने दो। अभी इसका कलर कैसा है? हम इसमें थोड़ा सा रिन फैब्रिक्स, मतलब कि कह सकते हैं सर ब्लीचिंग पाउडर को थोड़ा सा डालेंगे और देखेंगे इसका कलर कैसा है। ये किनका कलर है? पेप्सी। ठीक, अब देख रहे हो ब्लैक कलर से कैसा हो गया, चेंज हो गया। तो इसमें भी देखो जितने भी सारे प्रोडक्ट होते हैं उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए कंपनी उसमें कलर डालती है या फिर मेकिंग करने के लिए अच्छा कलर डालती है। ठीक, ये फर्स्ट देखिएगा आप, इसका कलर कैसा था? पहले ब्लैक था, पर ये कैसा होगा? इसका कॉम्बिनेशन ये पहना है। सेकेंड हम लोग ट्राई करते हैं, ये आप लोग शायद कभी ट्राई किए होंगे। क्या है ये? लीची पान। मिक्स फ्रूट। ये लीची नहीं है सर, मिक्स फ्रूट करके कुछ है। हाँ, इसको देख के ट्राई करके कि इसका कलर कुछ होता है कि नहीं। रुक जाइए, उससे मत करिए। सर पीना है? हाथ से कर- दूसरा कुछ ले आए होंगे आप तब, मतलब ठीक है याद भी मानेगा कि हाँ वही चीज है। सर उठाइए इसको, थोड़ा ट्राई कीजिए। हाँ वो पार्ट में ट्राई करना है। ये नहीं कर सकते। पेन से ही बोल सकते हैं। नहीं, विज्ञान के जो शिक्षक होते हैं बहुत तेज होते हैं, कुछ भी ले आएंगे और बता देंगे एक्सपेरिमेंट करके देखिए आप ये है, इसलिए सर जो भी एक्सपेरिमेंट था हाँ, वो रियल लाइफ के बेस ट्राई पे। करके है हाँ। बस सर कुछ होइएगा तो इसका जिम्मेवारी हम ले लेंगे, क्योंकि हमें बोल दिए। क्या है कि ये प्रोडक्ट को हम अभी तक ट्राई नहीं किए। अभी तक ये प्रोडक्ट को ट्राई नहीं किए। चलिए इसको देखते थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि इसका इसमें कलर होता है या फिर नहीं होता। ठीक, अब ये कैसा दिख रहा है? ठीक, ये कैसा हो गया? तो इसमें कलर मिलाया हुआ है, किसके लिए? अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ये कॉम्बिनेशन इसका उसको लगा। अब लास्ट आता है बहुत फेवरेट, जो भी बहुत मार्केट में चल रहा है। सर इसको भी ट्राई कीजिएगा। स्टीम बोले कोई ना थी। अच्छे मुझे देखना चाहिए। क्या वही है सर? ठीक है। वैसे वैसे ये सब तो पीते नहीं है आप, फिर भी इसको देख लेते थोड़ा ट्राई करके। पीना चाहिए बच्चों को मना करने के लिए। सर इसलिए आपको पीला होगा, सर गिलास के ये कलर आपको दिख रहा है? जानते हैं ये बहुत गंदा प्रोडक्ट है। हम ये नहीं कहेंगे कि इस कंपनी का हम बुराई कर रहे हैं, ना हमको ये पैसा देता है एडवांटेज करने के लिए, ना और कुछ देता है। बस सिर्फ हम एक पर्सपेक्टिव के लिए बता रहे हैं ताकि आप बच्चों को इससे बचा सकें।
ये बहुत केमिकल है, ठीक। अगर हम इसमें थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, देखिए इसका कलर कैसा है, देख रहे हैं? कुछ दिख रहा है आपको? इसलिए अगर जितने भी बच्चे आपके स्कूल में हैं या फिर जो भी, उन लोगों को इन सब चीज़ों से दूर रखना है। अगर हम इसमें और डालेंगे तो देखिएगा क्या इसका कलर चेंज होगा, देखिए अभी भी इसमें डालने के बाद भी क्या हो रहा है, ये कॉम्बिनेशन था किसका, स्ट्रिंग का। हमने 3 कॉम्बिनेशन को देखा। पहला हमने देखा पेप्सी का। पेप्सी में आपको पता हो कि पेप्सी में बहुत सारे शुगर साल्ट्स का मिक्सचर होता है, जिसे हम लोग कह सकते हैं सर हेटेरोजेनियस मिक्सचर। मिक्सचर 2 टाइप्स के होते हैं, हेटेरोजेनियस और होमोजेनियस। होमोजेनियस मिक्सचर उसे कहते हैं जिसे कि बोल सकते हैं सर हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर, जिसमें पता ही ना चले कि क्या मिला हुआ है। आप देख सकते हैं पहला कॉम्बिनेशन किसका था, पेप्सी का, दूसरा कॉम्बिनेशन मिक्स फ्रूट्स का, और तीसरा क्या है, स्ट्रिंग का। ये तीनों में आप कितना डिफरेंस देख रहे हैं, आपको पता चल रहा है? चलिए एक फाइनल एक्सपेरिमेंट और कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी पीने के पास से, हाँ पानी के पास से सर दीजिए एक फाइनल एक्सपेरिमेंट। देखिए कुछ कर सकते हैं कि ऐसा हम जरूर कर सकते हैं, पानी तो दे ही सकते हैं, पानी देना तो नहीं सकता। हम एक बीकर में लेते हैं कुछ पानी को, ये क्या पानी, माजा का स्लैश का बोतल पर पानी से डालते हैं। हमने क्या लिया, पानी, ठीक। इसमें अगर हम 1-2 बूंद कलर को डाल देते हैं, ठीक, और इसको हम मिला देते हैं कि ये पूरा डिवेलप हो गया, घुल गया इसमें, ठीक है। अगर हम ये बोलेंगे कि ये जो है नीला कलर वो पानी में बदल जाएगा, क्या पॉसिबल है ये नहीं? ये ब्लीचिंग पाउडर डालने के बाद ब्लीच को डालेंगे ना, फिर वो एक्चुअली साफ बात होगा। ये समझिएगा, ब्लीचिंग पाउडर किसी भी सब्सटेंस का कलर को चेंज कर सकता है, मतलब कि उसको डिस्कार्ड कर देगा। आप कोई भी कलर को देखिएगा तो देखिएगा क्या क्या ये कलर जो है वो कैसा था, पहले से बताइएगा कैसा था ये पहले, ब्लू था, अभी कैसा दिख रहा है, व्हाइट। एक्चुअली ये जो है ना ब्लीचिंग पाउडर, ये पहले से यूज करता है, बहुत पसंद है, इसीलिए थोड़ा सा ये पूरा व्हाइट नहीं दिख रहा होगा पर ये दिख रहा है। हम इस प्रैक्टिकल से या फिर इस एक्टिविटी से ये समझ सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस में कितने कलर है, उसको हम डिस्कार्ड कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक और है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, जिसे सर आप लोग देखे भी होंगे और सर ट्राई भी किए थे मेरे को क्लास में, क्योंकि फोर्स एंड प्रेशर्स का एक चैप्टर है उसको बताने समय। तो एक मोनोमीटर आता है जिसमें से प्रेशर को मेजरमेंट किया है, ठीक है। तो उस एक्टिविटी को करने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा यूज करेंगे इस पाइप, सर अभी उसी का यूज करना है सर। नहीं सर उसको ढक्कन बंद किया था, इसीलिए उसी का यूज करना है। अरे तो बढ़िया था, पानी का यूज कर ले रहे थे। अगर मैं ये कहूँ कि इस पाइप में कुछ हम स्ट्रिंग को डाल देते हैं, ये ज़्यादा थोड़ा सा ये हो गया सर, अच्छा कोई बात नहीं, एयर है सर, पहले एयर ले लिया क्योंकि इसमें होता है सर पहले से CO2 डाला होता है। सारा एयर को हाँ। ये मिक्स फ्रूट में नहीं होना चाहिए CO2। ये एक कॉन्सेप्ट है, आप देख रहे हैं इसमें कुछ डाला हुआ है ना। आपको घर जब बनवाते होंगे या फिर वहाँ पे कुछ देखे होंगे तो ये ज़्यादातर वो जो घर में काम करने वाले आते हैं उन लोग ये टेक्निक का यूज़ करते हैं। क्या वो कभी पढ़े हैं फिजिक्स? क्या नहीं,
क्या उनको पता है एटमॉस्फेयर प्रेशर के बारे में? नहीं। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली करके बच्चों को बताएं कि ये प्रैक्टिकली मतलब प्रैक्टिकल्स में क्या होता है, कैसे वो इस सब्सटेंस को यूज करके अपना एक दीवार का लेवल्स को बना पाते हैं, तो आइए हम लोग देखेंगे। अगर हम ये कहेंगे कि इन दोनों का लेवल अभी एग्जिस्ट दिखा है, अगर मैं इसको ज़्यादा ऊपर कर दूं तो भी लेवल सेम आ रहा है, फिर और कम करूं तो भी लेवल क्या रहा है? सेम आ रहा है। और मैं अगर ये बोलूं कि ये लेवल अब सेम नहीं जाएगा, बस एक रीजन है, अगर मैं इधर से इसको थोड़ा सा बंद कर दूं तो बता यहाँ से क्या इन हो रहा था? एयर हो रहा है जो एटमॉस्फेयर में हमारा। अगर हम इसको बंद कर देते अब देखिए इसका लेवल अब नहीं जाएगा नीचे। क्या जा रहा है क्या? नहीं। बट जैसे हम इसको छोड़ेंगे ऑटोमेटिक। तो यहाँ से क्या एग्जिट किया इसमें? प्रेशर। कौन? एटमॉस्फेयर। हम सिर्फ फूंक मार रहे हैं क्या? नहीं। कौन इसमें प्रेशर एग्जिट किया? एटमॉस्फेयर। और यही फंडामेंटल्स का यूज करके हम लोग अपना जो दीवार होता है उसका लेवल बना। अब एक और एक्सपेरिमेंट था कि अगर मैं ये बोलूं कि इस पाइप में जो लिक्विड फॉर्म में डाला हुआ है उसे अगर हम इसको एक तरफ से छोड़ दें तो ये सारा नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? ये पानी वाला पाइप सारा नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? नहीं गिरेगा। तो किसको लगता है कि नहीं गिरेगा? आके ट्राई कीजिए। आइए, आई विल ट्राई। मोस्ट वेलकम। फिर गिरा दीजिएगा तो साफ भी करना होगा। अब यहाँ आप उस पे चढ़ जाइए केवल, कोई दिक्कत नहीं। पर गिरना नहीं चाहिए पानी। आज कोई बात नहीं, आप ट्राई कीजिए। आप भले गिर जाइए। नहीं पानी नहीं गिरना चाहिए। हाँ, छोड़ना पर गिरे वो तो पानी गिर जाएगा, छोड़ने के बाद गिर जाएगा। हाँ, अब नहीं गिरेगा। अब बताइए आखिर ये क्यों नहीं गया? एयर नहीं, उसको यहाँ दबाइए। एयर ट्रैप कर दिए हम लोग। ठीक है, मैम, दबाइए। एयर में ट्रैप कर दिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा गिर जाएगा तो सर। अगर हम इनको बोलेंगे अभी पानी गिर रहा है क्या? नहीं गिर रहा। हम बोलेंगे वहां से जैसे छोड़ दीजिए आप। अभी देखिए गिर रहा होगा, गिर रहा है। एक्चुअली हुआ क्या समझाते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाया। मतलब कि देखिए जैसे कि यहाँ पे हम इसको ट्रैप कर दिए, बंद कर दिए, ठीक है। और जैसे बंद किए तो यहाँ से एयर इंटर नहीं हो पाया और जो वाटर था वो वहीं पे स्टेबल हो गया, मतलब कि वहीं पे रुक गया। जैसे हम इसको छोड़े यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन किया और सारा क्या हुआ? लिक्विड नीचे चला गया। ये फंडामेंटल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। वैसे जो एक्टिविटी था वो दिखा दी है। अब इनके बारे में 2-4 बात किन्हीं से रखना चाहते हैं, मतलब कि कोई बोलना चाहेंगे साइंस के बारे में? आई विल ट्राई। एनी पर्सन? कौन सर? Thank you, Sandeep sir, giving me opportunity for teaching methods of science. There are many experiments we all are see. So it is interesting. How interesting it's science? Because in assembly hall we see this experiment. Many students see and we not use Sting, Pepsi, mixed fruit because it is not sufficient for our health. So I will try and I opportunity. So we decided to this experiment play in assembly. तो बच्चे के माइंड पे क्या आएगा? कोई बोल सकते हैं? अगर इस एक्सपेरिमेंट को असेंबली हॉल में किया जाए तो हम, क्योंकि छोटे बच्चे को ये समझा पाना कि स्टिंग को पीने से ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, अगर हम उस बच्चे को इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके बच्चे को दिखाएं तो शायद वो अपने माइंड से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इनकॉन्शियस माइंड, आवर इनकॉन्शियस माइंड फॉलो ऑल assumption because it is the necessary for our life. Thank you, sir. Thank you, sir.
वैसे बेसिकली आज जो हमने टॉपिक को समझाया, शायद सभी को समझ में आया होगा। और इस मेथड से अगर इस स्ट्रेटेजी से अगर हम बच्चे लोगों को समझाएं तो बहुत बेटर लेको मिलेगी। मैटर ये करता है कि अगर यदि आप साइंस को पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को क्या समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है उसके अंदर में। अगर आप उसको किताब से सिर्फ पढ़ाते जाइए तो उसको समझ में नहीं आएगा। साइंस एक ऐसा एक्टिविटी है जिसको जब तक आप कीजिएगा नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। आप आइजैक न्यूटन के बारे में जानते होंगे, वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे, ये मिथ है, ये जो भी है, वो उनके सामने से एक सेब गिरा और सेब गिरने के बाद क्या हुआ, उसको एक थियरी समझ में आया कि भाई ये कैसे गिरता है। वो फिर लगाए न्यूटन फर्स्ट लॉ, ग्रेविटेशन के कारण से यहाँ पे गिरता है। अगर यदि उस समय वो सोचते नहीं तो आज शायद न्यूटन से फिजिक्स का इन्वेंशन नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को, बच्चे लोगों को जब भी आप पढ़ा रहे हैं तो एक एक्सपेरिमेंट के साथ पढ़ाएं, उसको इंटरेस्ट भी लगेगा और उस चीज को समझने में बहुत ही इजी वे हो जाएगा। और इतना ही बोल के ये वेबिनार्स को एंड करते हैं। थैंक यू।